হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমি সুলেমান ইন্ডিয়া থেকে আবারও চলে আসলাম আমার ইউটিউব চ্যানেল জেন্টল রিয়াকশনে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। ভিডিও শুরু করার আগে আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন, চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক শেয়ার দিয়ে পাশে থাকবেন। বন্ধুরা, সম্প্রতি যে বিষয়টি সারা বিশ্বকে নাড়া দিচ্ছেন, যে বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়াতে ঝড় তুলেছেন, তা হলো ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের মধ্যে চলে থাকা সংঘাত। গত 7 অক্টোবর শনিবার দিন সকালবেলা হামাস যোদ্ধারা গাজা উপত্যকা থেকে প্রায় 5,000-এরও অধিক রকেট নিক্ষেপ করে ইসরায়েলের উপর। এই হামলার পাল্টা হামলা চালায় ইসরায়েল ফিলিস্তিনদের উপর। ফলস্বরূপে উভয় পক্ষের হাজার হাজার জনতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই হামলাকে অপারেশন আল আকসা স্টর্ম বলে জানিয়েছেন হামাসের শীর্ষ কমান্ডার মোহাম্মদ দাইফ। এই হামলার প্রতিশোধের হুমকি দিয়ে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ফিলিস্তিনি হামাসের কাছে না আছে তেমন কোনো যুদ্ধ করার মতো অস্ত্র, না আছে যথেষ্ট পরিমাণে সৈন্য সংখ্যা, কিন্তু এর বিপরীতে এর সব কিছুতে যথেষ্ট পরিমাণে পরিপুষ্ট হলো ইসরায়েল। তারপরেও ফিলিস্তিনি হামাসরা কেন বারবার ইসরায়েলের মতো একটা শক্তিশালী দেশের উপর হামলা চালায়, কেন ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল মাঝে মাঝে এমন ধরনের যুদ্ধে লিপ্ত হয়, এই সব কিছুর যদি উত্তর আমরা জানতে চাই তাহলে প্রথমে আমরা জানতে হবে যে ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের ইতিহাস কী। ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের যদি আমরা ইতিহাস দেখি তাহলে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে ফিলিস্তিনদের সাথে ধোঁকা হয়েছে, ফিলিস্তিনদের সাথে অন্যায় হয়েছে। এই অন্যায় কে করেছে, কিভাবে করেছে, এই সব কিছু যদি আমরা জানতে চাই তাহলে আজকের এই ভিডিওটি আমরা শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। এই ভিডিওটিতে খুব সুন্দরভাবে ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের যেটা ইতিহাস, সেই ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেছেন অ্যানালাইসিস প্রজ্ঞা। এই ভিডিওটি আমি নিয়েছি প্রজ্ঞা কাপান্না নামের একটি চ্যানেল থেকে, যেখানে প্রজ্ঞা নামের একজন অ্যানালাইসিস খুব সুন্দরভাবে ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের যে ইতিহাস, সেই ইতিহাস ব্যাখ্যা করেছেন। লিঙ্ক আপনাদেরকে ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব, আপনারা ওখানে গিয়ে অরিজিনাল ভিডিওটা দেখতে পারবেন। অরিজিনাল ক্রিয়েটরকে সাপোর্ট করতে একদমই ভুলবেন না। তো চলুন আমরা প্রথমে ভিডিওটি দেখে নেই, তারপর না হয় আপনাদের সাথে কথা হবে। लेट्स प्ले द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, भारत पहले फिलिस्तीन के साथ था। भारत का बिल्कुल क्लियर स्टैंड था कि जमीन छीनने वाले इजराइल के साथ भारत किसी भी हाल में खड़ा नहीं होगा। अटल का दौर बदला और भारत भी बदल गया। अब भारत इजराइल के साथ है, लेकिन इजराइल बना कैसे फिलिस्तीन की जमीन पर शरणार्थी बनकर के आया और फिलिस्तीन को ही निकल गया। आज के हमारे वीडियो का फोकस इस बात पर रहेगा कि इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन कैसे छीन ली और कैसे अमेरिका से गलबहियां करके देश की मान्यता ले ली और कैसे इजराइल को अमेरिका सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है। तो दोस्तों बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, जिससे पूरी बात आपको एकदम आराम से समझ में आ जाए। दोस्तों, भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच पड़ने वाले फिलिस्तीन को यहूदी, मुसलमान और ईसाई तीनों धर्म के लोग अपनी पवित्र जगह मानते हैं। इस इलाके पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था। ऑटोमन साम्राज्य ने 4 सदी से भी ज्यादा लंबे वक्त तक फिलिस्तीन पर राज किया। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप से फिलिस्तीन में यहूदियों का पलायन शुरू हुआ। इसे पहला आलिया कहा गया। आलिया यहूदियों के दूसरे देशों से पलायन को कहा जाता है। यह पलायन साल 1881 में यूरोप में हो रहे नरसंहार से बचने के लिए हुआ था। इसके बाद 1904 से 1914 के बीच दूसरा आलिया यानी पलायन शुरू हो गया, और यह पलायन भी नरसंहार से बचने के लिए हुआ था। हजारों की संख्या में यहूदी फिलिस्तीन में आकर के बसने लगे। इस बीच यानी 1904 से 1914 के बीच ही चाइम वाइजमैन नाम का एक केमिस्ट और ब्रिटेन में यहूदियों का बड़ा लीडर पहली बार फिलिस्तीन जाता है। ये वहां के जाफा इलाके में एक कंपनी बनाता है, जिससे फिलिस्तीन में इजराइल की नींव पड़ती है। इसके 3 साल के भीतर एक यहूदी नेशनल फंड बनाया जाता है, जिससे फिलिस्तीन में यहूदियों की कॉलोनी बसाने के लिए जमीन खरीदी जाती है। इसके बाद मिर्ज बन आमेर में 60,000 फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। विरोध के बावजूद सालों तक फिलिस्तीन में यहूदियों की एंट्री का सिलसिला जारी रहता है।
20वीं सदी की शुरुआत में जब यहूदियों का पलायन तेज हुआ तो 1909 में पहले यहूदी शहर तेल अवीव की स्थापना हुई। इन सब के बीच ही पहला विश्व युद्ध भी शुरू हो गया। विश्व युद्ध चल ही रहा था कि उस दौरान 1917 में ब्रिटेन में विदेश सचिव आर्थर बॉलफोर्ड ने ब्रिटेन के एक यहूदी नेता लॉर्ड राथचाइल्ड को एक चिट्ठी लिखी। इसे बॉलफोर्ड डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। अब इस चिट्ठी में बॉलफोर्ड ने यहूदियों को फिलिस्तीन में राष्ट्रीय घर देने की बात मान ली थी। इसके साथ ही फिलिस्तीन इलाके में यहूदी राज्य की बड़े स्तर पर नींव पड़ गई थी। पहले विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो गया। फिर ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर के खाड़ी देशों का बंटवारा कर लिया। सीरिया पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया, इराक और फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। ये सब कुछ लीग ऑफ नेशंस की देखरेख में हुआ। मतलब जब यूएन नहीं था तब लीग ऑफ नेशंस काम करता था और यहीं पर अंतरराष्ट्रीय पंचायतें हुआ करती थी। दोस्तों, आप ये कहानी बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन होंगे कि अच्छा कौन है, इजराइल या फिलिस्तीन, या फिर इजराइल कैसे बना, वो सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, फिलिस्तीन अंग्रेजों का गुलाम था। फिलिस्तीन पर पहले विश्व युद्ध के बाद अगले 10 सालों में लगभग 1 लाख यहूदी फिलिस्तीन में बसने के लिए चले आए। अब नतीजा ये हुआ कि 1936 से 1939 के बीच अरब में विद्रोह हो गया, और ये विद्रोह मुस्लिमों ने किया क्योंकि वो अपने देश में घुसे चले आ रहे यहूदियों की खिलाफत कर रहे थे। यूरोप से जान बचाकर भागे यहूदी इस संघर्ष में लड़े। यहूदियों को लगा कि हर जगह पर हम पीटे जा रहे हैं, कब तक पीटते रहेंगे। इस संघर्ष में हजारों लाखों लोग मारे गए। आखिरकार 1939 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदियों के आने पर रोक लगा दी। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया। दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों के खिलाफ जमकर अत्याचार हुए। चुन चुन कर यहूदियों को मारा जाने लगा। यह अत्याचार हिटलर की नाजी सेना कर रही थी। हिटलर की नाजी सेना से बचने के लिए यहूदियों ने फिर भागना तो शुरू किया, लेकिन दुनिया के बाकी मुल्क उन्हें अपने यहाँ शरण देने से बच रहे थे। फिर जगह कहाँ मिली जानते हैं? फिर जगह मिली फिलिस्तीन में। जब ये सब कुछ हो रहा था तब गुपचुप तरीके से एक आलिया भट्ट नाम से एक आंदोलन भी चल रहा था। इसके जरिए यहूदियों को गुपचुप तरीके से फिलिस्तीन में बसाया जाने लगा। एक अनुमान के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के आखिर तक फिलिस्तीन में यहूदियों की आबादी 30% से ज्यादा हो गई थी। अलग यहूदी राष्ट्र की मांग होने लगी। यहूदियों के लिए वैसे तो अलग देश की मांग लंबे समय से हो ही रही थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध और नाजियों के हाथों यहूदियों के नरसंहार के बाद यह मांग और भी ज्यादा तेज हो गई। ब्रिटेन ने यहूदी और अरब प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके मसले को सुलझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। यहूदी फिलिस्तीन को यहूदी और अरब देश में बांटने की मांग पर अड़े थे, जबकि अरब इसके खिलाफ में था। 15 मई 1947 को ब्रिटेन ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र की महासभा के पास भेज दिया। सितंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव में एक अरब मुल्क और एक यहूदी देश की बात थी। 48% हिस्सा फिलिस्तीन को दिया गया और 44% हिस्सा इजराइल को दिया गया, जबकि यरूशलेम के 8% हिस्से की जमीन अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के हिस्से में थी। दिसंबर 1947 में गृह युद्ध शुरू हो गया। इस बीच ब्रिटेन ने ऐलान किया कि 15 मई 1948 को वो यहां से चले जाएंगे। इस ऐलान के बाद यहूदी विद्रोह संगठनों की कार्रवाई में 2.5 लाख से ज्यादा अरबों ने फिलिस्तीन छोड़ दिया। ब्रिटिश शासकों के लौटने के एक दिन पहले 14 मई 1948 को यहूदी नेता डेविड बेन गुरियोन ने एक अलग यहूदी राष्ट्र का ऐलान किया। उन्होंने इसे इजराइल नाम दिया। इजराइल के गठन के एक दिन के बाद ही मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने हमला कर दिया। ये पहला अरब इजराइल संघर्ष था। दोस्तों, अरब और इजरायली सेना के बीच लगभग 1 साल तक संघर्ष चलता रहा। आखिरकार 1949 में सीज फायर का ऐलान हुआ और इजराइल फिलिस्तीन के बीच अस्थायी बॉर्डर बनी। इसे ग्रीन लाइन के नाम से जाना जाता है। सीज फायर की घोषणा से पहले तक जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था, जिसमें पूर्वी यरूशलेम का हिस्सा भी शामिल था, जबकि मिस्र ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। वेस्ट बैंक यरूशलेम और जॉर्डन के पूर्वी इलाके में पड़ता है। फिलिस्तीन और इजराइल दोनों ही इसे अपनी राजधानी बताते हैं। गाजा पट्टी की 50 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सीमा इजराइल से लगती है। 1967 की लड़ाई में इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन साल 2005 में उसने अपना दावा छोड़ दिया था। इसके उलट वेस्ट बैंक पर अभी भी फिलिस्तीनियों का कब्जा है। गाजा पट्टी फिलहाल हमास के नियंत्रण में है। इजराइल हमास को फिलिस्तीन का आतंकी संगठन मानता है। आज की तारीख में इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष को धार्मिक चश्मे से दिखाया जा रहा है। इतने सालों में फिलिस्तीन के साथ अन्याय का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि 1949 में इजराइल को तो अमेरिका के सपोर्ट से एक देश की मान्यता मिल गई थी, लेकिन फिलिस्तीन को नहीं मिली थी, जबकि बंटवारा
यूएन ने ही किया था। इजराइल की दो राजधानियां हैं, तेल अवीव और यरूशलेम। यरूशलेम को इजराइल की राष्ट्रीय राजधानी की मान्यता नहीं थी, लेकिन ट्रंप ने यरूशलेम को भी इजराइल की राजधानी की मान्यता दे दी थी। अब यहाँ पर वो कहावत फिट बैठती है कि जब सैया भाई कोतवाल तब डर काहेगा। दोस्तों, अमेरिका ने हमास को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। जब अमेरिका ने ही घोषित कर रखा है तो सब उसे आतंकी संगठन मानते हैं, लेकिन हमास और फिलिस्तीन ऐसा नहीं मानते हैं। अरब देश ऐसा नहीं मानते हैं। हमास फिलिस्तीन में चुनाव लड़ता है और फिलिस्तीन की अघोषित आर्मी होने का दावा करता है। मामला यहां पर अटक जाता है कि जिस तरह का सपोर्ट अमेरिका इजराइल का करता है, उस तरह का सपोर्ट अरब देश फिलिस्तीन का नहीं करते हैं। अरब देश ऊपरी मन के साथ फिलिस्तीन का साथ देते हैं। आपको क्या लगता है कि हमास के पास इतने रॉकेट कहां से आ गए कि 20 मिनट में 5000 मिसाइलें दाग डाली? दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस रिसर्च वीडियो में आपको जो चीज़ें पसंद आई होंगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा इसको शेयर करके बताइएगा। और अगर बहुत शेयर करेंगे तो समझ जाएंगे कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक का पेज अगर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। नमस्कार, राम राम तो असलाम, जय हिंद। তো বন্ধুরা, আমরা যে ভিডিওটি দেখলাম, এই ভিডিও থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে ফিলিস্তিনদের সাথে সরাসরি ধোঁকা হয়েছে, ফিলিস্তিনদের সাথে সরাসরি অন্যায় হয়েছে। 1947 সাল নাগাদ ইহুদিরা মাত্র ফিলিস্তিনের 6% জমি দখল করেছিল এবং ইহুদিদের মোট জনসংখ্যা ছিল ফিলিস্তিনের 33%। 1947 সাল অবধি 66% আরব জনগোষ্ঠী তখনও দেশটির 94% জমির মালিক ছিল। কিন্তু 1948 সালের 14 মে তারিখে ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠাতা ডেভিড বেন গুরিয়ানে যখন ফিলিস্তিনের মাটিতে নিজেদের জন্য একটি স্বাধীন দেশ ঘোষণা করলো, আর সেই দেশ ঘোষণার পরে যখন আরব জনগোষ্ঠীরা তাদের দেশকে বাঁচাতে, তাদের ফিলিস্তিনের মাটিকে বাঁচাতে ইসরায়েলের সাথে যুদ্ধ করলো, তখন সেই যুদ্ধে ফিলিস্তিন হেরেছিল এবং ইসরায়েল ফিলিস্তিনের 78% জমি দখল করে তাদের দেশ বিস্তারিত করেছিল। তো ভিডিওটি দেখে আপনাদের কি মনে হয়, সত্যি কি ফিলিস্তিনদের সাথে ধোঁকা হয়েছে আপনারা? তো বন্ধুরা, আজকের মতো এতটুকুই। আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে নতুন কিছু নিয়ে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, খুদা হাফিজ।